Hello everybody. Today we will solve the work done by an ideal gas at constant temperature. Work done by an ideal gas at constant temperature. How at constant temperature, when we are not increasing or decreasing the temperature but we are increasing or decreasing the volume, what will be the expression for that? As we know, work done formula is P dV, but when volume is changed and temperature is kept constant, how this formula will be modified? For that, suppose in a container, in a piston, this is a cylinder, and here one piston. Here gases are filled inside the cylinder. This is the piston. These gases are kept at temperature T. And now what we do at this constant temperature without changing in temperature, we will expand or compress. We can do. Now we expand. The gases are expand. So piston is moved upward. This piston moves upward. Now these gas particles expand. So volume is changed because suppose the volume was V initial Vi, and here the volume is final volume is V. However, the temperature is constant but volume is increased. So there must be some change in the pressure. Now see, while expanding, how we can find the work done? As we know, W is equal to, for an ideal gas, P dV. Here dV we have to integral, but we have also P. To find out integral, this expression is little tough. If P is constant, we could take out P outside and dV. इस तरह से हम कर सकते थे, but we cannot do this because this P is varying. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. लेट अस सी. अब इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? जैसा कि हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. अब यहाँ से अगर हम P को रिप्लेस करें, सो एन आर टी अपॉन वी. कैन वी पुट दिस एक्सप्रेशन? नाउ लेट अस सी. यहाँ हम क्या करेंगे? वी विल W is equal to P dV, and now we will replace this P by nRT upon V and dV. Now here we see N, R and T, all three are constant. We can take out all three, and now remaining is 1 upon V dV. And we know this integral 1 upon V, and this dV is from I to F, from final volume, initial volume to final. Here nRT log V. This expression integral by solving this we can write this I to F. Okay. Now W is equal to nRT log V, and the V is I to F. Now by further solving this, we find Vf minus log Vi, and we can write RT log Vf upon Vi. This is the expression for the work done at constant temperature. अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वर्क डन तो हमें पता चल गया कि हाउ मच वर्क इज़ डन, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वर्क डन, हाउ इट विल बी डिसाइडेड?
अब इसके लिए देखो हम दो चीज़ कर सकते हैं। हमने एक पिस्टन लिया था, जैसे कि हमने एक पिस्टन लिया था, एक सिलेंडर लिया था, और सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया था कि गैस यहाँ रखी थी विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन। तो हमने क्या किया था इनिशियली, हमने इसको या तो एक्सपांड किया था, ये गैस फिल कर दी है, वॉल्यूम वी आई पे, टेम्परेचर टी कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको दो चीज़ कर सकते हैं, दो केस हम देखेंगे, वी विल सी टू केसेस। हमने एक केस में इसको एक्सपांड कर दिया है, पिस्टन को हम ऊपर लेके गए, इसमें एक्सपेंशन हो गया, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो द फर्स्ट केस बिकम्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपांड कर दिया हमने, वी आई एफ जो है वो आई से बड़ा है, सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई। और यहाँ पे देखिए, अब हम अगर इसको W निकालते हैं तो क्या होता है, एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। चूँकि वी एफ जो है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है वी आई से, तो हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर वी एफ ज़्यादा है वी आई से तो इसका पूरे का वैल्यू ये तो एक होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो डैट इज़ लॉग वी एफ अपॉन वी आई इज़, ये एक से बड़ा है तो log 1 की वैल्यू जीरो, तो अगर वो 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू आएगी मोर देन जीरो। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब वर्क डन पॉजिटिव मीन्स ये जब हमने इसको एक्सपांड किया, जब हमने एक्सपेंशन किया है तो वर्क डन हमें मिला है पॉजिटिव, यानी कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। अब दूसरा केस हम लेते हैं, यहाँ पे हमने एक्सपेंस किया था, ये वॉल्यूम को एक्सपांड किया था। अब हम दूसरा देखते हैं, अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं, इफ़ वी कंप्रेस इट, यहाँ वॉल्यूम वी आई है, ये वी फाइनल है, नाउ हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे एट सेम टेम्परेचर टी। हमने कंप्रेस किया, ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब वर्क डन हम फाइनली ये निकालेंगे तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, टेम्परेचर इज सेम, सो इट विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। सेकंड केस बनता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, log वी एफ अपॉन वी आई का जो वैल्यू है ये एक से कम आ जाएगा, क्योंकि एफ़ का वैल्यू कम है, वी एफ इज छोटा है, चूँकि वी एफ इज लेस देन वी आई, तो इसका जो वैल्यू है ओवरऑल डैट विल बी log वी एफ अपॉन वी आई विल बी लेस देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो आ रहा है मतलब नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर हम इसको यहाँ रखें एन आर टी लॉग वी एफ बाई वी आई, तो इट विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव आता है अगर वर्क डन, था इसका मतलब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। तो ये हमने आज सीखा कि कैसे जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क, पहले तो एक्सप्रेशन हमारा कैसे निकाला जाता है, हाउ वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम एक्सपेंशन कर सकते हैं या फिर हम कंप्रेशन कर सकते हैं, एंड बोथ विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ फर्स्ट केस में, अगर हमने फर्स्ट केस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन लेट अस सी, तो इसमें हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारा log वी एफ बी आई इज वैल्यू इज़ मोर देन जीरो, सो इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव जब होता है तो ये डन, द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है। और जब हम दूसरे केस में आइसोथर्मल कंप्रेशन लेते हैं, जहाँ पर कि हम इसको कंप्रेस कर रहे थे, वॉल्यूम कम कर रहे थे, इन दिस केस
isothermal compression, the value of log Vf by Vi is नेगेटिव. सो ये नेगेटिव वर्क आएगा, वर्क इज़ डन ऑन दिस सिस्टम. आज की वीडियोस के लिए इतना ही. आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू.